السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد میاں کی آنکھیں بند تھی۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا واپس چلا جاؤں، دوسرے ہی پل اسد میاں آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوہرا بھری صبح سی روشنی تھی۔ خدا کے لیے ایاز سینہ درد سے ٹوٹا جا رہا تھا۔ سہیلا بھابی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ڈیبنگ کر کے چہرے کے دھبے مٹا رہی تھی۔ کمرے میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی دھیرے دھیرے باہر پھیلتے اندھیرے کے ساتھ ابھرنے لگی تھی۔ سورج ڈوبنے میں کچھ اور دیر تھی۔ جمیل، ارے جمیل، سہیلا بھابی نے آواز دی۔ اسد میاں کے پلنگ کی چادر سفید تھی۔ پلنگ کے نیچے دو پھٹی ہوئی چپلوں میں الجھی ہوئی ایک سلا بچی تھی، جسے شاید وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار استعمال کر رہے تھے۔ ان کے پیر گندے اور ایڑیوں کی کھال چٹکی ہوئی تھی۔ بستر پر چادر کا وہ حصہ جہاں ان کے پیر تھے داغدار ہو چکا تھا۔ ظفر بھائی آ رہے ہیں، میں نے اسد میاں سے آنکھیں بچاتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن پھر میں نے دیکھا آنکھیں تو وہ خود ہی بند کر چکے تھے۔ سہیلا بھابی نے مذاق اڑاتی ہوئی سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر آواز دینے لگی، جمیل، ارے کہاں غارت ہو گیا؟ ارے ہاں آ رہا ہوں، کہیں باہر سے آواز آئی۔ دور آسمان میں چمک سی پھیلی، ایک سکتے کے بعد دھماکہ ہوا۔ اسد میاں کی آنکھوں کے پپوٹے ہلکے سے ہلے، لیکن آنکھیں بند ہی رہی۔ 2 3 4 توپیں چل رہی تھی۔ افطار کا وقت ہو گیا تھا، لیکن یار توپیں ہی کیوں؟ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو سلامی دی جا رہی ہو۔ سائرن بھی تو بجایا جا سکتا ہے۔ ایک بار میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں ہنس کر رہ گیا تھا، اگر خود صاف نہیں رہ سکتے ہو تو دوسروں کو تو چین سے کرنے دے۔ خود کے پلنگ پر نہیں لیٹ سکے، ساری چادر کا ستیہ ناش کر دیا۔ سہیلا بھابی خود کو ایک خوبصورت سنگار میز میں لگے آئینے میں دیکھتے ہوئے بدبدا رہی تھی۔ اور اگر چاند دکھ گیا تو کل عید ہے، کوئی دھلی چادر بھی نہ ہوگی۔ میں نے دیکھا آئینہ بالکل بے داغ تھا، لیکن لکڑی کے بنے میز کے فریم کی پالش جگہ جگہ سے اڑ گئی تھی اور کئی جگہ پڑے ہوئے گڈھوں سے لکڑی کا ایک اپنا رنگ جھانکنے لگا تھا۔ آئینے کے نیچے بے گنتی شیشیاں رکھی ہوئی تھی۔ جمیل تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے سلام کیا، پھر عجیب طرح سے مسکرا کر اپنے باپ اسد میاں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی امی؟ پھر جیسے مجھ سے چھپاتے ہوئے اسد میاں کی طرف اشارہ کر کے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی سوال اپنی ماں سے پوچھا۔ سہیلا بھابی نے ہونٹ سکوڑ کر گردن ہلا دی۔ بلانے کے لیے تمہیں گھنٹوں آوازیں دینی پڑتی ہے۔ ان کے لہجے میں تیزی تھی۔ مجھے کیا معلوم آپ آ گئیں، بغیر کہے تو چلی گئی تھی۔ جمیل نے دو بدو جواب دیا۔ چاند دکھا؟ دیکھو تم کہیں جانا مت، ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ جمیل نے شکایتی سور میں کہا، شنو اور دوسرے لڑکے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ جانا وانا کہیں نہیں ہے، آپ میرا انتظار کیجئے، کہتے ہوئے سہیلا بھابی بھیتری کمرے میں چلی گئی۔ کیول اسد میاں کے سانس لینے کی آواز۔ ظفر میاں ابھی تک نہیں آئے تھے، کیا وہ آئیں گے؟ یار تم چلو، میں نے افطار پر کچھ دوستوں کو بلایا ہے۔ اسد میاں کے تیسرے بلاوے پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں شہناز آپا کے پاس بیٹھا عید کے شیر خورما کی لسٹ بنا رہا تھا، تم چلو میں آتا ہوں۔ اسد میاں کے سرانے کیلنڈر کے پنے کئی مہینوں سے نہیں بدلے گئے تھے۔ کمرے کے ایک حصے میں کالی اپہولسٹری کے گہرے صوفے بچھے ہوئے تھے۔ کونے میں لمبے سے بک شیلف پر ترتیب اور بے ترتیبی کے ساتھ بہت سی کتابیں تھیں۔ ظفر نہیں آئے اب تک۔ اسد میاں کی جھلملاتی سی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دوستوں کو کھانے بلایا ہے، آتے ہی ہوں گے، میں نے دھیرے سے کہا۔ کب سے طبیعت خراب ہے؟ 4 5 دن سے خراب ہے، سینے میں سخت درد ہے، دل بالکل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان کی سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ تماش بازی ہے، میری ایکٹنگ، اور سارے مرضوں کی ایک ہی دوا ہے، پیتھیڈین۔ اسد میاں کے دوسرے بلاوے پر ظفر میاں نے جھنجلا کر کہا تھا، کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، چاند دکھ گیا تو کل عید ہے، مذاق بنا لیا ہے انہوں نے تو۔ پھر گھڑی کھول کر یوں ہی جھٹکا دینے کے بعد وہ اسے کان سے لگا کر سننے لگے۔ اس سمے مجھے گاؤں سے آئے کوئی 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میں نے اسد میاں کی کلائی تھامتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ اسد میاں چھت کی طرف مسکراتی سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں جانے یا انجانے چھت کے اسی حصے پر ٹکی تھی جہاں پنکھا لگانے کا حکم تھا۔ بجلی کی فٹنگ وہاں تک باقاعدگی سے جا کر ایک دم 2 ننگے وائروں کی آنکھوں سے جھانکنے لگی تھی۔ تم میرا ایک کام کر دو۔ ان کی آواز اور آنکھیں پہلی بار میری اور مڑی۔ جی بتائیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے کل سے انجیکشن بھی نہیں لیا ہے، کل دوپہر سے، شاید اس سے طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ ان کے سور میں بلا کی منت تھی۔ 3 انجیکشن پیڈیتھین کے مدن کے یہاں مل جائیں گے۔ میں نے دھیرے سے ٹھنڈی سانس لی۔ اسد میاں بنا پلکے جھپکائے انہی منت بھری نظروں سے میری اور دیکھ رہے تھے۔ اسی سمے ہاتھ میں کالے چمڑے کا بیگ تھامے پیازی رنگ کی ساڑی پہنے سہیلا بھابی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے ذرا باہر جانا ہے، جیسے انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ یہ جمیل کہاں چلا گیا؟
फिर बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए वो पर्दा उठाकर बाहर निकल गई। असद मियाँ उसी तरह मेरी तरफ देख रहे थे। सीढ़ियाँ उतरते उतरते मैं न चाहते हुए जफर मियाँ के घर की ओर मुड़ गया। पलक मंजिल के बाहरी हिस्से में जफर मियाँ और इसके पीछे उनकी छोटी बहन शाहिदा रहती थी। पिछले टुकड़े में सबसे बड़े भाई असद मियाँ का खानदान था। घूमकर मैं जाफर मियाँ के कमरे में पहुंचा। शहनाज आपा तन्नू को उसका ईद का जूता दिखा रही थी। मामू आ गए, देखिए मामू, अब्बू हमारा नया जूता लाए हैं। तन्नू बहुत खुश था। और बेटा, मामू को नहीं बताया कि तुमने शेर कैसे मारा था और तुम्हारी बंदूक कहाँ है? जफर मियाँ बाहर के कमरे में अंदर आ गए थे। तन्नू नकल करके बता रहा था कि जफर मियाँ हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। भाई खाना तैयार हो गया, रियाज का तो रोजा था, सूख गए होंगे, उन्होंने शहनाज आपा से कहा और दोनों बावर्ची खाने की तरफ चले गए। तन्नू अपनी बंदूक लटकाए शायद दादी माँ को शेर का शिकार सुनाने चला गया और मैं अकेला दीवान पर बैठा रह गया। कमरे के दो कोने में रखे लैंप्स के शेड्स में से रोशनी छन छन कर अंधेरे में घुल रही थी और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि सूरज निकलने के थोड़े पहले या डूबने के बिल्कुल बाद का समय हो। बीच में महोगनी के सिरहने की खूबसूरत दोहरी मसहरी थी जिसके लिए ऊपर छत में मच्छरदानी के स्ट्रिंग्स लटक रहे थे। बाजू में दीवार से लगी हुई गहरे काले रंग की वार्डरोब्स थी और उसके बाद लगभग कोने में लैंप के पास ड्रेसिंग टेबल। पूरे कमरे में ब्लड रेड और ब्लैक के मिलते जुलते पैटर्न का कालीन बिछा हुआ था। नहीं, जफर मियाँ भूल नहीं सकते थे। फिर क्या जानकर वो असद मियाँ के जिक्र को टाल गए थे। 15 दिन पहले भी जब मैं गांव से आया था, असद मियाँ की तबीयत खराब चल रही थी। बिल्कुल रमजान से पहले तो एक दिन उनकी हालत नाजुक हो गई थी। तब मैंने जफर मियाँ से कहा था किसी डॉक्टर को दिखा दें। तुम भी यार कमाल करते हो, हर तीसरे दिन किस डॉक्टर को दिखाया जा सकता है? फिर कुछ बीमारी हो तब ना। सड़क पर कोई पहचानने वाला मिल जाए तो टांग में चोट लगने से फ्रैक्चर तक ही कहानी उसे सुना देते हैं। दवा के पैसे मांग लेते हैं और जाकर वही पैथिडीन किसी जान पहचान वाले के यहाँ अगर मुर्गियां पली हैं तो जाकर कहेंगे बच्चों ने बहुत दिन से अंडे नहीं खाए हैं, जो कुछ मिल गया सिंधी को बेच देंगे और फिर वही पैथिडीन। जीना हराम कर दिया है। इंश्योरेंस वालों से तो कुछ मकान का किराया मिलता है, वो भी इन्हीं घपलों में उड़ाते हैं। जमील के चोरी के अलावा अब सट्टे से भी शौक करने लगे हैं। इधर भाभी की हरकतें देखो, नसरीन भी उन्हीं के रास्ते पर जा रही है। और असद मियाँ की माँ बदनसीब है, माँ ने फूट फूट कर रोते हुए कहा था। जिंदगी और मौत दोनों की तरफ से बदनसीब, जैसे जिया है वैसे ही मरेगा। रमजान के मुबारक महीने में तो उस गुनाहगार को मौत तक नसीब नहीं हो सकती। और फिर जैसे कुछ सोचकर वो चुप हो गई थी और बहुत देर तक कुछ भी नहीं बोली थी। मैं जफर मियाँ के कुछ कहे बगैर कमरे और फिर फलक मंजिल के बाहर आ गया। खुली सड़क पर हल्की सी खुनकी का एहसास हो रहा था। बहुत आगे स्ट्रीट लैंप जल रहा था और वहां तक गुप अंधेरा था। मेन रोड तक पहुंचने के लिए मुझे काफी पैदल चलना पड़ा। पीछे से आते हुए स्कूटर की रोशनी और आवाज से सड़क पर छाया हुआ अंधेरा जैसे धड़का, फिर खामोशी और अंधेरा एक दूसरे में घुलकर दूर तक फैलते चले गए। जिंदगी में लेन देन के कुछ कानून शायद लिखे ही नहीं गए। ये भी क्या कि जो कुछ हमें तरके विरसे में मिल जाए हम उसे अपना समझ जरब देने के तरीके ढूंढने लगे। मुझे पता नहीं क्यों असद मियाँ अच्छे लगते थे। मैंने उनसे जियाद मेल मिलाप को देखते हुए शहनाज आपा ने समझाया था कि मैं उनके पास न जाया करूं क्योंकि वहां लोग जुआ खेलने और शराब के लिए इकट्ठा होते थे। फिर धीरे धीरे सब सामने आ गया था। असद मियाँ ने फलक मंजिल 3 अलग अलग पार्टियों को रहन सहन रख दी थी, इंश्योरेंस कंपनी और कुछ दूसरे मालदार सेठों को। देखते ही देखते डिक्रियां आने लगी थी और फलक मंजिल के एक बड़े हिस्से को फ्लैटों में तब्दील करके किराए पर उठा दिया गया था, उधार वालों की किस्तें चुकाने के लिए। असद मियाँ की माँ ने पहले काफी बर्दाश्त किया क्योंकि असद मियाँ वैसे भी उनके सामने लाडले बेटे थे। नवाबों से ज्यादा लाड से पाला है मैंने इसे, आंखों में आंसू भरकर वो कहा करती थी। लेकिन फिर उन्होंने इस बात को लेकर मुकदमा दायर कर दिया था कि जायदाद क्योंकि उनके नाम थी इसलिए उनके जीते जी उसे रहन रखने का हक असद मियाँ को नहीं था। शाहिदा के ख्याल से मेरे मुंह में कड़वाहट फैल गई। अलीगढ़ जाने से पहले मैं शाहिदा के बहुत करीब आ गया था और मेरी आने वाली जिंदगी के ज्यादातर प्लानों में से मैंने शाहिदा को भी शामिल समझ लिया था। बहरहाल इस बात को भी अब 5 साल हो चुके थे। शाहिदा और साजिदा का एक बच्चा था और अब असद और जफर मियाँ की माँ भी अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहती थी। सड़क के अगले मोड़ का बल्ब भी किसी ने फोड़ दिया था। अंधेरा उसी तरह छाया हुआ था, सिर्फ पास की कोठी की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी और कुत्ते के भौंकने की आवाज। मेरे कदम धीरे धीरे उठते रहे। सबसे ज्यादा हैरत मुझे असद मियाँ के उस अंदाज पर होती थी जिसके साथ उन्होंने पिछले 8 सालों में हर स्टेज पर हालात को स्वीकार किया था। एक खास लापरवाही और बेनियाजी उनके अंदाज में थी। शाहिदा और जफर मियाँ के यहाँ बच्चों के कपड़े सिए जा रहे थे, शीर खुरमे के लिए सूखे नारियल घिसे जा रहे थे, बादाम पिस्ते काट धोकर सुखाए जा रहे थे।
ये कि हर आदमी अपनी जगह मशगूल था और असद मियाँ जैसे उनके सबकी मजबूरी को समझते थे। असद मियाँ को इन सब लोगों, बहन, भाई, माँ और दोस्तों के बीच देखकर पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता था और जैसे सिर्फ एक असद मियाँ ही अपने मुकाम पर थे और सारी दुनिया बदल गई थी। फलक मंजिल की बाहरी हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। कंपाउंड वॉल में जगह जगह रखने पड़ गए थे और कई जगह आसानी के ख्याल से लोगों ने दाखिले के लिए दीवार तोड़ डाली थी। दाईं तरफ शाहिदा और साजिदा का हिस्सा था जिसके बाहर एक साइकिल खड़ी हुई थी और आगे दूर तक फलक मंजिल का हिस्सा और जमीन किराए पर उठा दी गई थी। अपने वकील दोस्तों के मशवरे और मदद से जफर मियाँ जमीन का कुछ हिस्सा मार्टगेज से बचाने में कामयाब हो गए थे। इस हिस्से पर शहनाज आपा ने अपना जेवर गिरवी रखकर एक छोटा सा फ्लैट बनवा लिया था जिसमें किराए पर कोई मिलिट्री के मेजर रहते थे। दाएं तरफ कंपाउंड में घास ही घास थी जो बीच में बने खूबसूरत हौज और फव्वारे को जैसे निगल गई थी। दरवाजा खुला हुआ था। असद मियाँ की बेचैन निगाहें मुझ पर ठहर गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए थे। असद मियाँ थोड़ी कोशिश के बाद तकियों के सहारे बैठ गए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट हर पल गहरी होती जा रही थी। कमरे में कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक अपने कमजोर जिस्म के बावजूद असद मियाँ ने खनकती सी आवाज में कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। कम से कम रमजान की कल शाम तक तो नहीं, आप यकीन कीजिए। खुदा मालूम असद मियाँ किससे कह रहे थे, लेकिन उनकी उस मुस्कुराहट में मुझे लगा हजारों कह कहे घिराए थे। फिर धीरे धीरे लोग असद मियाँ के कमरे से रुखसत होने लगे। थोड़ी देर बाद मैं अकेला वहाँ रह गया। सुहेला भाभी शायद अंदर कपड़े बदल रही थी और बच्चे सोने के लिए लेट चुके थे। मैं खामोश बैठा जमीन पर बिछे कालीन को घूरता रहा, उसके डिजाइन, उसके रंग के बारे में सोचता रहा। उठते वक्त मैं सोच रहा था कि उस रात असद मियाँ के कमरे से शायद हर आदमी मायूस होकर वापस लौटा था। अगली शाम 4:30 बजे मैं जफर मियाँ के कमरे में बैठा ईद की खरीदारी का बजट जोड़ रहा था। सवेरे मैं असद मियाँ को देखने गया था और खिड़की में से उन्हें किताब पढ़ता देखकर वापस आ गया था। मैं लिस्ट बना ही रहा था कि जमील भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। आपको अब्बू बुला रहे हैं। उनकी सांस फूल रही थी। अम्मी घर में है? मैंने पूछा। कोई भी नहीं है। तबीयत कैसी है उनकी? वैसी ही है, सीने में दर्द हो रहा है, आपको जल्दी से बुलाया है। जमील मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, पैथिडीन के लिए बुलाया होगा। मैंने सोचा और 5 रुपये का नोट लेकर मैं अपने जेब में रख लिया। असद मियाँ की हालत फिर रात जैसी हो रही थी। रंग पीला पड़ गया था, आंखों की पुतलियां फिर गिर गई थी और सांस बहुत तकलीफ से आ रही थी। एकदम पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा था, जैसे किसी सुनसान सड़क पर से मैं अकेला खड़ा रह गया हूँ। थोड़ी देर में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और मैं भागता हुआ डॉक्टर को बुलाने के ख्याल से बाहर आ गया। काफ़ी दौड़ने के बाद मुझे एक टैक्सी मिली। जब डॉक्टर के साथ टैक्सी फलक मंजिल में दाखिल हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। शाम के लंबे साए ज़मीन पर फैलते जा रहे थे। कमरे में एक तरफ सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। असद मियाँ की आंखें खुली हुई अजीब ढंग से कहीं देख रही थी। कम रोशनी में लग रहा था जैसे उन आंखों में मिला जुला गुस्सा और मुस्कुराहट अब भी थी। एकदम किसी चीज़ ने मेरा ख्याल असद मियाँ के मुर्दा चेहरे से अपनी तरफ खींच लिया, जैसे दरो दीवार हिल गए थे। कोई गोला फलक मंजिल के बिल्कुल ऊपर आकर फूटा था। 2, 3, 4 तोपें चल रही थी रोजे के इफ्तार की, ईद के चांद की। रमज़ान अब ख़त्म हो रहे थे और असद मियाँ अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और रमज़ान में हर रोज़ा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।